Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter, the 18th century political formation, and as we have seen that due to various reasons, the Mughal emperor was becoming very weak, and the Mughal empire was declining, and we have also seen that there were some old Mughal provinces like Bengal, Awadh, and Hyderabad which became very much powerful uh, and they were so much powerful that if they wanted they could have uh, broken their relationship with the Mughal emperor, but they did not break their relation with the Mughal. They were having formal ties with the Mughal emperor, and they were very much powerful. So we were discussing about Hyderabad, which was founded by Nizamul Mulk, uh, Ashraf Jah, and he was appointed as this governor of Awadh by Farooq Siyar, and then he was also given the charge of Deccan. And Asif Jah, he was having complete control, uh, complete political and financial administration in his hand, and he took advantage of the situation in the Mughal emperor's court because there was competition and conflict among the nobles, and this gave him the opportunity to consolidate his power, and he became the actual ruler of this region of Hyderabad. He How he did this, as we were discussing this in the previous class, as he brought skilled soldiers and administrators from northern India. Okay, and he also appointed mansabdars and granted them jagirs. Okay, and one more thing was there that in spite of being an employee of Mughal emperor, what was done by Asaf Jah that he started taking independent decisions without any directions from the Mughal emperor. He started to take decisions on his own, and the Mughal emperor was there only to confirm the decisions which were already taken by the Nizam. And now we see that the the state of Hyderabad was engaged in struggle also with the Marathas in the west, है ना. मराठास के साथ उनका एक तरफ वॉर चल रहा था, और with the Marathas in the west and with independent तेलुगु warriors जिनको नायकास कहा जाता था, उनके साथ भी इनका वॉर चल रहा था. ठीक है, मराठास के साथ एंड विथ इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स ऑफ द प्लेटू. और निजाम जो थे वो असफुल जा, he wanted to take control of the कोरोमंडल कोस्ट ऑल्सो, बिकॉज कोरोमंडल कोस्ट जो था वहाँ पर बहुत ही टेक्सटाइल रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, और अगर वो कोरोमंडल कोस्ट पे उनका कंट्रोल हो जाने से क्या होता कि जो भी ट्रेडिंग वहाँ से बहुत ज़्यादा होती थी तो उसको बहुत काफ़ी इनकम होता है ना. So his ambition was to control the rich textile producing areas of Coromandel coast in the east, but it could not be this ambition of Nizam could not be completed, could not be fulfilled because the British were there. The British were controlling the Coromandel coast, and they were becoming very much powerful in that region. And now we see that about Awadh. So we have done कैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने कैसे अपने आप को वहाँ का रियल एंड पावरफुल रूलर बना लिया, वो हमने देखा. और अब हम करेंगे अवध के बारे में. बरहान उल मुल्क सादात खान. ठीक है, दिस मैन वाज अपॉइंटेड एज सूबेदार
ठीक है, इनको सूबेदार अपॉइंट किया गया बाय द मुगल एम्परर ओनली in 1722. Burhan ul Mulk Sadat Khan, he was appointed as Subedar of Awadh in 1722, and he founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire, and this was Awadh. एंड अवध जो है बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन था, बिकॉज यहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी, एल्यूवियल सॉइल जिसको हम कहते हैं। गंगा प्लेन जो है, ये गंगा प्लेन था पूरा का पूरा एरिया, जो कि गंगा रिवर से लाए हुए एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ था। तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड था, पहली चीज़। इसलिए क्रॉप अच्छी होगी तो रेवेन्यू अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा तो स्टेट रिच होगा, है ना। और दूसरी चीज़ जो थी, ये ट्रेड रूट जो था नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में पड़ता था। नॉर्थ इंडिया और बंगाल का जो ट्रेडिंग था वो अवध के थ्रू ही होता था। तो जो ट्रेडर्स जब इस रास्ते से जाएंगे तो दे विल गिव ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस टू द एम्परर, तो दैट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्परर। ओके, एंड वी सी दैट बरहान और मुल्क जो थे उनके पास भी दोनों पावर थे, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। सूबेदार तो थे ही, वो ही वॉज द गवर्नर, तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था। उसके अलावा दीवानी और फौजदारी के भी वो हेड थे। दीवानी क्या हो गया? दीवानी मीन्स सिविल। इट मीन्स इट मीन्स दैट दीवानी मीन्स रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं, दीज कम्स अंडर सिविल, और जिसको हिंदी में दीवानी कहते हैं। एंड फौजदारी इज द मिलिट्री related. So Barhan ul Mulk was the head. He was controlling everything: the administration, the revenue, and the military. So he was all powerful. है ना? He was responsible for managing everything, be it political affair, be it financial affair, or be it military affair. So he was all powerful. Okay, and now we find that Burhanul Mulki also wanted to decrease the influence of Mughals in Awadh. And how he did this? He did this by reducing the number of जागीरदार्स ऑफ द मुगल्स। जिन जागीरदार्स को मुगल्स ने अपॉइंट किया था अवध में, उनके नंबर्स को उन्होंने रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज द जागीरदार्स हु आर अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, दे विल बी लॉयल टू द मुगल एम्परर ओनली। So, in order to gain their loyalty, what is required that in order to gain the loyalty of the Jagirdars, it was required by the this Subedar of Awadh, that he should appoint his own people as जागीरदार। सो दिस वाज डन कि जो मुगल्स ने जिनको अपॉइंट किया था उनके नंबर को वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय रिड्यूस डिक्रीज करना, मुगल की इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज होती है जब वो उनके जो ऑफिस होल्डर्स थे, यानी कि जागीरदार्स, उनके नंबर को वो डिक्रीज करते हैं। तो ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने जागीर्स की साइज को भी रिड्यूस कर दिया। जो जागीरदार क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के हेड हुए, एक एक रीजन उनको दे दिया गया, एक टेरिटरी उनको दे दिया गया कि यू विल बी द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, तो वो उनकी जागीर है, जो जमीन है, जिस जमीन के वो मालिक है। ओके, तो अब जो जमीन उनके पास थी, जो जागीर उनके पास है, उसके साइज को भी छोटा कर दिया गया। जो मुगल्स के अपॉइंटेड जागीरदार्स थे, उनकी जागीर की साइज को भी छोटा कर दिया गया। एंड he also appointed his own loyal servants to the vacant positions। जो vacant positions हुए, जब उनके नंबर्स को कम किया गया, पोजीशन उनके कम हुए, तो क्या हो गया कि उन्होंने अपने जो लॉयल सर्वेंट्स थे उनको उन्होंने जागीरदार बना दिया। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जागीरदार जिनको अपॉइंट किया जा रहा था, या जो पहले से ही मुगल्स के अपॉइंटेड जागीरदार थे,
उन पे काफ़ी कंट्रोल रखा जा रहा था, सुपरवाइज किया जा रहा था, बिकॉज जागीरदार्स दे वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स ऑफ देयर ओन जागीर. सो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट दे कैन डू चीटिंग्स, है ना. वो रेवेन्यू ले लेंगे बट रेवेन्यू जमा नहीं करेंगे सूबेदार के पास, है ना. इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रेवेन्यू के मैटर्स में चीटिंग की. तो इसको उसको उन्होंने रोकने के लिए उनका वो असेसमेंट करते रहते थे, रीअसेसमेंट करते रहते थे. उसके लिए वो ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे जो कि उन पे उनको सुपरवाइज करेगा, उनका असेसमेंट करेगा कि वो जो हिसाब दे रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं, सही है या नहीं, है ना. And not only this, we see that he seized a number of Rajput jamindaris and agriculturally fertile lands of the Afghan of Rohilkhands. इस तरह से उन्होंने अपने पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश की और किया भी, है ना. And here one more thing is that we find that at that time the importance of local bankers and mahajans increased very much. ठीक है, जो लोकल बैंकर्स और महाजन्स थे उनका ये काफ़ी इंक्रीज कर गया था इम्पोर्टेंस. क्यों? इसके लिए क्या होता था, एक एक न्यू सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, एंड दैट सिस्टम वाज नोन एज रेवेन्यू फार्मर्स और इजारदार्स. ठीक है, इजारदार या रेवेन्यू फार्मर्स हम उनको कहते हैं. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो इजारदार्स होते थे वो अग्री करते थे कि एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी वो स्टेट को देंगे. कहाँ से देंगे ये सम ऑफ मनी? बाय टेकिंग द रेवेन्यू. ठीक है, फार्मर्स से वो रेवेन्यू लेंगे, पेजेंट से रेवेन्यू लेंगे और एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो है वो सूबेदार को वो देंगे. ठीक है. अब इसमें जब वो इस तरह की अग्रीमेंट होती थी इजारदार और स्टेट के बीच में, या हम कह सकते हैं सूबेदार के बीच में, तो लोकल बैंकर्स जो होते थे ना, दे प्लेड द रोल ऑफ गारंटर. उनको गारंटी दिया जाता था. ठीक है, वो गारंटी देते थे कि हाँ ये जो कह रहा है, जो इजारदार कह रहा है वो पेमेंट करेगा. ठीक है. और हाँ, इजारदार जो होते थे वो उसके लिए, जैसे सपोज किसी भी टेरिटरी के लिए बोली लगाई जाती थी, ऑक्शन होता था कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी से कितने आप रेवेन्यू ले सकते हैं. तो जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे वो तरह तरह की बोलियां लगाते थे. जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए तैयार हो जाता था एक पर्टिकुलर टेरिटरी से, उसको वो टेरिटरी दे दी जाती थी. ठीक है. अब वो उसको तो टेरिटरी दे दी गई कि ठीक है इस टेरिटरी से आपको दे दी गई, अब आप इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन टू द स्टेट बाय दैट रेवेन्यू फार्मर. अब रेवेन्यू फार्मर ने कहा कि ठीक है मैं दूंगा आपको. इसके पीछे अब किसी को गारंटी लेनी जरूरी होती थी कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो रेवेन्यू फार्मर है, दिस रेवेन्यू फार्मर विल पे द स्टेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. तो ये गारंटी कौन लेता था? दिस गारंटी वाज टेकन बाय द लोकल बैंकर्स. ठीक है. और इसमें क्या होता था कि रेवेन्यू फार्मर्स को पूरी की पूरी फ्रीडम होती थी कि आपको जैसे भी टैक्स कलेक्शन करना है आपकी मर्जी. उसमें उसको फ्रीडम था, उसमें उनको किसी भी तरह का कोई कंट्रोलिंग नहीं था, है ना. और इसमें इन सब जो ये सब कुछ नया जो इजारदार की जो सिस्टम स्टार्ट हुई, जिसको रेवेन्यू फार्मर्स के सिस्टम हम कह रहे हैं, उससे क्या हुआ कि एक नया ही सोशल ग्रुप जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो गया, जो कि मनी लेंडर्स और बैंकर्स का ग्रुप था. It became very powerful and it started to play a very prominent role in the management of the revenue system of the state, which was never happened in the past. It was for the first time that the Mahajans and banks uh, mm, started to play a very prominent role in the state. Okay, and now we will see about Bengal. Bengal was under the control of Mughal only, है ना, but gradually it broke away from Mughal control, and it happened under Murshid Quli Khan. The names are important for you.
Murshid Quli Khan. He was a Naib. Murshid Quli Khan was not a Subedar, he was a Naib. And what is the meaning of Naib? Naib is deputy to the governor of the province. ठीक है, जिस किसी भी प्रोविंस का जो गवर्नर होता है उसके डेप्यूटी को हम कहते हैं नायब. तो ही वॉज अपॉइंटेड एज नायब एंड ही वॉज नॉट अ सूबेदार. Still, we find that he was very clever and he seized all the power of the सूबेदार. सूबेदार के जितने भी पावर्स थे उसको उन्होंने यूसर्प कर लिया, अपने हाथों में ले लिया, सीज कर लिया. ठीक है. And just like the rulers of Hyderabad and Awadh, he was also he was also controlling the revenue administration of the state. In order to be powerful, what is most important? The most important thing is that you must have control over the money. और तीनों को हमने देखा, अवध में भी देखा, हैदराबाद में भी देखा और बंगाल में भी वही हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट यही कि जो रेवेन्यू है दैट शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू बी पावरफुल. अगर आपको पावरफुल होना है तो रेवेन्यू आपके कंट्रोल में होना चाहिए. सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने अपने कमांड में लिया और वही काम जो कि पीछे के हमने देखा है, दोनों ने जिस तरह से हैदराबाद और अवध में जो हुआ था वही यहाँ भी हुआ. और जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, ही ट्रांसफर्ड देम टू उड़ीसा, है ना. ही ट्रांसफर्ड द मुगल जागीरदार, ही ट्रांसफर्ड all Mughal Jagirdars to Orissa, and then he ordered a major reassessment of the revenue of Bengal. बंगाल से जो भी रेवेन्यू आनी थी उसके रीअसेसमेंट के लिए इन्होंने कहा कि फिर से उसको असेस करके देखा जाए कि जो है वो सही है या नहीं है ना. तो रेवेन्यू जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कलेक्ट करना था और किसी भी जमींदार को ये इस बात की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो चीटिंग कर सके. द नो जमींदार वाज अलाउड टू चीट, है ना. एंड कई बार होते थे कि जो जमींदार होते थे, देखो पीजेंट से स्टेट डायरेक्टली नहीं लेता था. सूबेदार जो होते हैं उनके नीचे जमींदार है और जमींदार जो है उनके नीचे पेजेंट्स है. तो जमींदार वर देयर टू टेक डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द peasants, and then जमींदार will submit that revenue to the governor. तो जमींदार जो थे उनको कई बार पूरा पूरा नहीं हो पाता था कैश, तो उनको कई बार बैंक से लोन लेना पड़ता था और कभी कभी वो उस लोन की रीपेमेंट भी नहीं कर पाते थे. तो इन दैट केस दे हैव टू सेल देयर लैंड. तो इस तरह से जमींदार के लिए कई बार कंडीशंस खराब हो जाती थी और बैंकों की कंडीशन बहुत ही इम्प्रूव कर गई, है ना. सो वी फाइंड कि इस तरह से जो रीजनल स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है 18th सेंचुरी में, उससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जमींदार्स में, है ना. और एक चीज़ और होती है कि जो स्टेट और बैंक है उनके बीच में एक क्लोज कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जो कि पहले कहीं भी नहीं था, है ना. और हैदराबाद और अवध में तो दिखा ही हमें, और बंगाल में भी जब अलीवर्दी खान रूलर बने तो उस समय बंगाल में भी ये हमें नज़र आता है. और इस समय जब अलीवर्दी खान का रूल था बंगाल में, तो एट दैट टाइम वी फाइंड दैट द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ, it became very prosperous at that time. The banking house of Jagat Seth became very prosperous. So we can see that ये जो तीनों ओल्डर मुगल प्रोविंसेस थे उन तीनों में कुछ कॉमन फीचर्स थे. वो क्या कॉमन फीचर्स हैं? लाइक okay, now we will discuss this in the next class.